A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic, important topic of chapter excretory products and their elimination, and the topic is nephron and their function. So start करते हैं with the topic nephron, structure of nephron and their function. Structure of nephron. There are different type of part of nephron which are responsible for the reabsorption of different molecule present in the blood. So यहाँ पे एक बार पहले ब्रीफ में स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे, then we discussing about the their function, the all different part कैसे functional होंगे. Now here is a cup like structure, and this cup like structure is known as the Bowman capsule. Now, from the Bowman capsule, a convoluted tubule arises which is responsible for the reabsorption of different molecule is known as the proximal part of proximal convoluted tubule. Here is a Bowman's capsule. Or from Bowman capsule a convoluted structure is arises. This part is known as the proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. Now from the proximal convoluted, a thin tube-like structure arises, and this thin tube-like structure is known as by the name of the scientist Henle, and the this part is known as by the name loop of Henle according to the scientist name. Loop of Henle, or collectively loop of Henle is formed by, there are two loops, that is ascending loop of Henle and descending loop of Henle. So here is descending loop of Henle. This part is known as ascending loop of Henle. Descending loop of Henle and ascending loop of Henle. This part is ascending loop of Henle. Now from the ascending loop of Henle, the tubule become renal tubule become broad and form a broad structure. This part is known by the name distal convoluted tubule. And also known as DCT part of the tubule, renal tubule. Now distal convoluted tubule finally collecting into the duct. This duct is known as collecting duct. So, and now some renal arteries are also present around the tubule, and this artery is known as the vasa recta, which arises from the efferent arteriole. So renal जो tubules, जितने भी renal blood vessels हैं, when they enter into the kidney, so they converted into the minute capillaries or form the branches of capillaries. इस capillaries को क्या बोला जाता है? Efferent arteriole.
व्हेन जो ब्लड होगा एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ये एंटर कर जाएंगे इन, और एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का यहाँ फॉर्मेशन होगा जिसे बोला जाएगा ग्लोमेरुलस। सो डिफरेंट यहाँ पे पार्ट होते हैं कैपिलरीज के। नाउ कैपिलरीज का स्ट्रक्चर, ये आर्टरी होंगे जो एंटर करेंगे इन द ब्लड कैपिलरीज और इन द बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में एंटर करने के बाद ये डिवाइड हो जाएंगे इन सेवरल माइन्यूट कैपिलरीज और फॉर्म करेंगे एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का फॉर्मेशन होगा। दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड और नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस एंड जिस पार्ट से ब्लड एंटर करेंगे और देन यहाँ से ब्लड पास हो जाएगा इन द बोमेन कैप्सूल में, पास हो जाएंगे बाय द डिफरेंट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द membrane of the Bowman capsule. That cell is known as the podocyte cell. Now जो यहाँ से फिर जो प्योर ब्लड है और फिल्टर्ड ब्लड है ये कैसे इस एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो एंट्री ब्लड की एंट्री कैसे हो रही है एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू। एफरेंट आर्टेरियोल एंटर कर रहे हैं ब्लड। नाउ ये इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू पास हो जा रहे हैं। इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू पास हो जा रहे हैं ना। जो एफरेंट आर्टेरियोल ये कैसे ये एफरेंट आर्टेरियोल फिर ट्यूब्यूल रीनल ट्यूब्यूल के अलोंग और रीनल ट्यूब्यूल को के सरफेस को कैरी करते हुए, और एफरेंट आर्टेरियोल क्या है ये पीसीटी लूप ऑफ हेनले और डीसीटी पार्ट के अराउंड रहते हैं, और इसे कलेक्टिवली मतलब कि जो कैपिलरीज हैं एफरेंट आर्टेरियोल इसके सराउंड में प्रेजेंट होंगे इस तरीके से कि दे कैन एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा और लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो जो लिक्विड पार्ट में ब्लड है या जो भी लिक्विड पार्ट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर है, ये सभी रीएब्जॉर्ब करके वापस से ब्लड कैपिलरीज में आ जाए। तो इसकी वजह से जो एफरेंट आर्टेरियोल हैं दे सराउंड द होल रीनल ट्यूब्यूल और पूरे होल रीनल ट्यूब्यूल को सराउंड करेंगे। और इस एफरेंट आर्टेरियोल जो सराउंड करते हैं इस एफरेंट आर्टेरियोल को बोला जाता है वासा रेक्टा। This part is known as vasa recta which are present around the renal tubule. जो renal tubule के around capillaries blood capillaries present होंगे, this tubule is known as और this renal blood vessel is known as the vasa recta. वासा रेक्टा है। अब जितने भी जो एफरेंट या बोमेन कैप्सूल है अलॉन्ग विद द ग्लोमेरुलस, ये दोनों को साथ में बोला जाता है मैलपिघियन बॉडी, कलेक्टिवली नोन एज द मैलपिघियन बॉडी। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल कलेक्टिवली नोन एज मैलपिघियन बॉडी। मैलपिघियन बॉडी। तो ये स्ट्रक्चर है रीनल ट्यूब्यूल का। नाउ अब यहाँ से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कैसे पास होंगे, कैसे यहाँ पे ट्रेवल करेंगे अलोंग विद द
रीनल ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन। तो जो किडनी में देयर आर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा, और किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से कलेक्टिवली इनका फॉर्मेशन होगा। अब एक नेफ्रॉन को अगर हम पढ़े डिस्कस करें तो देयर आर two type of nephron mainly present in the kidney. These are juxtamedullary nephron or cortical nephron. So present according to the appearance of nephron, or where they are present in the renal tubule, or where they are present in the kidney. वो कहाँ पे present है किडनी में, तो based on the presence of or their origin, they are divided into two part, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो टू पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और टू नेफ्रॉन। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आर दोज नेफ्रॉन which are generally present in the mostly जो 70% पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल होगा, दे आर प्रेजेंट इन द मेडुलरी रीजन ऑफ किडनी, एंड जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। और सो यहाँ पे किडनी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक किडनी को there are two parts. Kidney is divided into two parts, the outer cortex or inner medulla. Outer cortex and here is inner medulla. कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में इन्हें डिवाइड किया गया है। नाउ दो ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन, दे आर नोन कॉर्टेक्स रीजन, दे आर नोन एज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, and the tubules which are present in the medullary region, those are known as juxtamedullary nephron. Medullary नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, टू टाइप्स के जनरली नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो इन द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन द लूप ऑफ हैंडले इज लॉन्ग, और ये क्या होंगे, क्योंकि जो नेफ्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होंगे मेडुलरी रीजन में, तो दिस पार्ट इनर पार्ट इज नोन एज द मेडुला ऑफ द किडनी। सो यहाँ पे जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे, द लूप ऑफ हैंडले इज लॉन्ग इन कंपैरिजन टू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बिकॉज कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो ऑलमोस्ट जितने भी पार्ट होंगे वो बहुत ही कम पार्ट एंटर करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 70% पार्ट जो रहेंगे इनके कॉर्टिकल रीजन में होंगे, ओनली 30% पार्ट इज प्रेजेंट इन द मेडुलरी रीजन। तो दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज नोन एज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एंड द medullary nephron or juxtamedullary nephron are those which are generally their 70% part present in the medullary region, only 20 to 30% part are present in the cortical region, they are included into the juxtamedullary nephron. So based on the presence of or occurrence इनसाइड द किडनी, तो इन्हें टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इफ दे आर मोस्ट पार्ट इनके प्रेजेंट होंगे कॉर्टिकल रीजन में, सो इन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और मोस्टली जो पार्ट प्रेजेंट होंगे मेडुलरी रीजन में, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में डिवाइड कर दिया गया है। नाउ कलेक्टिवली बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली मैल्पियन बॉडी बोला जाता है। अब दे आर कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे इन द यूरिन फॉर्मेशन में, ये डिफरेंट ट्यूब्यूल में कैसे रीएब्जॉर्प्शन होगा, कैसे फिल्टर होगा ब्लड का, और कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये अब डिस्कस करें। डिफरेंट यूरिन का फॉर्मेशन होगा। नाउ नेक्स्ट यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बोमेन कैप्सूल, Bowman capsule, BCT,
loop of Henle, DCT, collecting duct, and here is blood capillary. Afferent arteriole or afferent arteriole. Here is efferent arteriole. Arteriole, this part is known as PCT, proximal convoluted tubule, loop of Henle, descending part of loop of Henle, loop of Henle, ascending part of loop of ascending loop of Henle, DCT, distal convoluted tubule, and collecting duct. नाउ यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा? यूरिन फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली कितना फिल्टर होता है पर मिनट? तो 1100 to 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर बाय किडनी पर मिनट फिल्टर होता है किडनी से। वो क्या है? 1100 to 1200 ml ब्लड। लेकिन क्या और इसी को क्या बोला जाता है कि फिल्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पर मिनट कितना फिल्टर एक ग्लोमेरुलस के थ्रू कितना फिल्टर हो रहा है? तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट rate is approximately 125 ml per minute and the जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा ये मतलब कि 180 लीटर ब्लड पर डे फिल्टर का फॉर्मेशन। अगर ये हम कैलकुलेट करें तो कितना होगा? 180 लीटर पर डे फिल्टर हो रहा है ब्लड का, पर डे फिल्टर किया जा रहा है ब्लड को। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 180 लीटर पर यूरिन का फॉर्मेशन हो पाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 99% रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू ये 99% रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू जो होगा 180 को कन्वर्ट कर दिया जाता है 1.5 लीटर्स यूरिन में। और ना ये पूरी प्रोसेस कैसे होगा? सबसे पहले ब्लड और फिल्ट्रेट का कितना फॉर्मेशन हो रहा है? 180 लीटर पर डे फिल्टर किया जा रहा है यहाँ से यूरिन से। और कैसे रीएब्जॉर्प्शन होगा? तो मेजर जो कंस्ट्रेंट होते हैं वाटर होते हैं जिन्हें रिमूव कर दिया जाता है तो 180 लीटर कन्वर्ट हो जाते हैं 1.5। और डिफरेंट सब्सटेंस फॉर एग्जांपल TCT पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो द फिल्ट्रेशन ऑफ द यूरिन कैरिड आउट बाय 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। तो फिल्ट्रेशन 3 लेयर के थ्रू मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के थ्रू किया जाता है। वन लेयर यहाँ पे इज एंडोथेलियल सेल ऑफ ब्लड वेसल। Here is endothelial membrane and here is basement membrane
basement membrane, and the membrane of Bowman capsule is epithelial और epithelium. सो ये डिफरेंट 3 मेम्ब्रेन मिलकर एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ से फिल्टर हो जाएगा. तो इन द एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल. दिस सेल इज नोन एज द पोडोसाइट सेल. Podocyte cells. These podocyte cells are responsible in the formation of filtrate or also responsible for the filtration of blood. सबसे पहले जो अदर फॉर्म्ड एलिमेंट है वो क्या होंगे, वो इसी ब्लड कैपिलरीज में रह जाएंगे. इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा. जो प्लाज्मा पार्ट है वो अंदर आ जाएंगे विद द पोडोसाइट सेल. तो क्योंकि एक स्पेशल डायमीटर होता है कि यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट इस बोमेन कैप्सूल में नहीं आ सकते हैं, सिर्फ प्लाज्मा ही पार्ट आएंगे. फॉर्म्ड एलिमेंट दैट मीन्स WBC एंड RBCs, प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन ऑल्सो. तो प्लाज्मा की जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है एक्सेप्ट प्रोटीन वो सभी एंटर कर जाएंगे इन PCT. अब प्लाज्मा में कौन कौन से ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज प्लाज्मा पार्ट में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, पोटेशियम, सोडियम, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एंड बाइकार्बोनेट आयन, वाटर मॉलिक्यूल, ये सभी रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे थ्रू द PCT पार्ट ऑफ द एक्सेप्ट दिस सोडियम पोटेशियम आयन को छोड़कर जितने भी सोडियम आयन है, सोडियम क्लोराइड दीज आर ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय द PCT पार्ट. तो यहाँ से कौन कौन से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड ऑल्सो रीएब्जॉर्ब बाय, एंड bicarbonate ion, these are also reabsorbed by PCT, and water molecule, these are also absorbed by PCT. एंड नाउ सिक्रीशन किस मॉलिक्यूल का होगा, जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और सिक्रीशन जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं इनका सिक्रीशन होगा. फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयन सिक्रीटेड इनटू द PCT पार्ट, और फ्रॉम द इंटरस्टिशियम और ब्लड कैपिलरीज और वासा रेक्टा से ये सिक्रीट होंगे इसमें रीनल ट्यूब्यूल में. एंड प्रोटॉन आयन ऑल्सो सिक्रीटेड इन द, एंड अमोनिया सिक्रीट कर दिए जाएंगे इन द PCT पार्ट. हियर इज पोटेशियम आयन ऑल्सो रीएब्जॉर्ब बाय द, पोटेशियम आयन भी रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे फ्रॉम द PCT पार्ट. नाउ अब यहाँ क्या होगा, जो लूप ऑफ हेनले है, दिस लूप डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले is only permeable for water, and water reabsorbed from the descending loop of Henle, or a part of loop of Henle is impermeable for water but permeable for sodium chloride. सोडियम क्लोराइड जितने भी हैं ये रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे यहाँ से, असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले. और नाउ DCT पार्ट, फिर से यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होगा पोटेशियम आयन का, water also reabsorb water molecule, and bicarbonate ion too. Now secretion same, here is proton secreted, secrete कर लिए जाएंगे, secrete from interstitium to the DCT part, or water are also reabsorbed from the DCT part. तो मेजर जो कंस्ट्रूमेंट 180 लीटर यहाँ पे था, 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वाटर हमेशा रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. जैसे कम से कम वाटर का एक्सक्रीशन हो तो ये इंश्योर किया जाता है. नाउ इन द डिफिशियंसी ऑफ वाटर डिफिशियंसी एंड डिहाइड्रेशन कंडीशन क्या होगा, यहाँ से हार्मोन रिलीज होंगे. हार्मोन्स आर रिलीजेड फ्रॉम द posterior pituitary gland. These hormones are antidiuretic hormone or ADH or vasopressin hormone. अब ये vasopressin hormone releases into blood by the blood circulatory system. The hormone reaches to the DCT part of loop, DCT part of the renal tubule. Then ये क्या करेंगे, हार्मोन एक्शन होगा, और these hormone is received by the these DCT cells, and एक्चुअली में पोरिन्स का फॉर्मेशन होगा, और
पोरिन्स क्या करेंगे, यहाँ पे पोर बना देंगे जिसके थ्रू वाटर का रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन कंडीशन और वाटर स्ट्रेस कंडीशन में ये होगा। नाउ यूरिया again water reabsorption is carried out by the collecting duct. Collecting duct में भी water का reabsorption होता है। Now next thing is secretion of urea. Urea secreted from also secreted from the collecting duct and which enter into the, ये ऑस्मोलैरिटी ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस के लिए होते हैं और ऑस्मोलैरिटी इसके मेंटेन करने के लिए यूरिया आते हैं। तो हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक ना हो, जो यूरिन है, यूरिन के कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए यूरिया सिक्रीट कर दिए जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन कर लिया गया है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर लिया गया है तो यूरिया सिक्रीट कर दिए जाएंगे, अदरवाइज यूरिया नहीं सिक्रीट होगा ना। यहाँ पे पूरी होल प्रोसेस में कैसे रीएब्जॉर्प्शन और यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले व्हेन ब्लड इंटर विद द हेल्प ऑफ इन द ब्लड किससे इंटर कर रहे हैं, enter into the Bowman capsule with the help of arteriole, that is afferent arteriole. Now afferent arteriole converted into the tuft of capillaries and these tuft of capillaries is known as the glomerulus and these form the glomerulus and the Bowman capsule and basement membrane collect together to form the filtration membrane. और मेनली कौन सी मेम्ब्रेन होगी, द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय द 3 लेयर। फर्स्ट लेयर इज एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल, सेकेंड लेयर इज basement membrane and the third layer is epithelium of the Bowman capsule. Now epithelium of Bowman capsule have a specialized cells has a specialized cell known as the podocyte cells. By the podocyte cells a special diameter of molecules enter into the Bowman capsule, lumen of Bowman capsule में enter करेंगे and जो एक्सेप्ट formed element और प्रोटीन पार्ट ऑफ प्लाज्मा enter into the Bowman capsule। जो अदर formed element है WBC RBC दे ये क्या होंगे, दे ये नहीं आ पाएंगे इसमें Bowman capsule में। और प्रोटीन पार्ट ऑफ प्लाज्मा इज ऑल्सो नॉट एंटर इनटू द Bowman ल्यूमेंस। Bowman capsule के ल्यूमेन में इंटर नहीं कर पाएंगे जो प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन फॉर्म्ड एलिमेंट्स दे आर पासेज इनटू द efferent arteriole में पास कर दी जाएंगे and rest part of plasma enter into the Bowman capsule from the then these plasma part travel along the PCT. From the PCT part there is reabsorption of different nutrients, electrolytes and important molecule, for example glucose, amino acid, bicarbonate ion, water and potassium ion also reabsorbed by the PCT part and there is a secretion part also occur from the PCT proximal convoluted tubule, that is ammonia secreted into the PCT part from the interstitium or the blood capillaries or vasa recta which are present around the renal tubule. Now here is proton are also secreted into the PCT part. Now these filtrate passes into the descending loop of Henle. From the descending loop of Henle, the descending loop of Henle is impermeable for sodium chloride but they are permeable for the water molecule, and from ascending loop of Henle the sodium chloride is reabsorbed from the ascending loop of Henle because they are impermeable for water molecule. Or now this filtrate passes into the DCT part where potassium, water and bicarbonate again reabsorbed by the hormonal action, or specifically water molecule is reabsorbed by the hormonal action, that is this hormone is known as the ADH or antidiuretic hormone or vasopressin. Vasopressin एंटीडायूरेटिक हार्मोन। इसी को वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है ना। Antidiuretic hormone with the action of from the action of ADH hormone which absorb or form the porins. Now with the help of porins the water reabsorbed by the DCT part. Now here
proton is also secreted into the DCT part. Now the collecting duct also play a major role in the reabsorption of water molecule and secretion of urea during for maintaining the osmolarity of the यूरिन फॉर्मेशन. तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे वाटर और यूरिया का वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है. देन अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो दे यूरिया ऑल्सो सिक्रेटेड इनटू द असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनरी. नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.